Hello students, today I am going to introduce with the LibreOffice suite. Okay, LibreOffice suite is basically like MicroOffice suite. Like in MicroOffice आप MS Word यूज़ कर सकते हैं, MS Excel, PowerPoint presentations बना सकते हैं, अपना database maintain कर सकते हैं MS Access में. Same as it is, LibreOffice suite में भी यही सब facilities हैं in the form of LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress for making more effective presentations. You can also maintain database, you can draw vector diagrams. So LibreOffice is basically a free available software, fully featured productivity suite, you can say that. इट्स नेटिव फाइल फॉर्मेट जो होती है, जैसे अपन एम एस वर्ड में यूज़ करते हैं, वो होती है आपकी .doc, लाइक दिस ओनली. आपका इसमें होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. तो आपका जो भी फाइल सेव होगा वो क्या होगा, आपका ODF फॉर्मेट में सेव होगा. ओके, इट इज़ एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट विच इज़ अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड एज रिक्वायर्ड file format for publishing and accepting the documents. Okay, LibreOffice can also open and save documents in many other formats also. Like you have published your document in the form of .odt, it can publish it in convert it into .doc. Okay, so file formats can be converted from one to another, including those used by several versions of Microsoft Office. LibreOffice includes word processor, spreadsheets, presentations. You can draw vector graphics. Vector graphics is a vector drawing tool that can produce everything from simple diagram or flowchart to 3D artwork. Okay, it's a smart connector feature, allow you to define your own connection points. You can use define your own connection points, or you can create drawing for any use. You can also one more thing available in this suite is you can maintain database. Like in MS Word you maintain your database with the help of MS Access. In this you can maintain with LibreOffice Math Formula Editor. Math is a LibreOffice formula or equation editor. You can use it to create complex equation that can include symbol or characters not available on standard font sizes. Okay, so the main advantages of using this LibreOffice suite is it does not need any licensing fees. Okay, you does not need any license to use this software. Secondly, it is an open source. You can download it from internet and you can operate it in any operating system. It is not restricted to any particular operating system. Like you can it is, as I have told you, it is an open source. You can download it for Mac operating system or for Ubuntu, Linux, various versions of Windows operating system. Okay, third advantage of this LibreOffice suite is LibreOffice runs on several hardware architecture and under multiple operating systems such as Microsoft Windows. So basically this cross-platform defines it is compatible with any operating system. It has very extensive language support. Okay, so now I'm going to tell you how you can install this software and download it from internet. Okay, just go to your web browser, type LibreOffice download. Okay, and you can click on this full version Office download. The latest version which is right now available is 6.1. It is very easy to download and run the setup and use this software. I'm not going to download because I have already downloaded. Now the first thing I want to tell you, मैं आपको सबसे पहले आपको LibreOffice राइटर का एक बिगिनर ट्यूटोरियल देती हूँ. Let me open this. See, this is the LibreOffice राइटर का जो पेज रहता है, जो MS Word की तरह काम करता है. ये है आपका डिफ़ॉल्ट पेज. ठीक है, दिस इज़ योर पेज, दिस इज़ योर टाइटल बार, दिस इज़ योर मेनू बार, दिस इज़ योर टूल बार. ओके, दिस इज़ योर टूल बार. You can use tools from here. This is your menu bar, and
दिस इज़ योर फर्स्ट वन वेयर यू आपका जो जहाँ पे लाइबर ऑफिस राइटर लिखा हुआ है वो आपका है टाइटल बार. द फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट. ठीक है, सेव कर लेते हैं अपन लैब सेशन के नाम से. ठीक है, वो ऑलरेडी ओडीटी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा. लैब सेशन डॉट ओडीटी आपको दिख रहा होगा. ओके, नाउ मैं एक नॉर्मल सा आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दिखा रही हूँ और उस बीच में मैं टूल्स भी यूज़ करते जाऊँगी तो आपको क्लियर होते जाएगा कि कौन सा टूल कैसे यूज़ करना है. ओके, फर्स्ट मुझे हेडर देना है अपने डॉक्यूमेंट में लाइक एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ इंसर्ट. आई एम गोइंग टू गो ऑन इंसर्ट. ठीक है, हेडर एंड फुटर आपको दिख रहा होगा. मैं हेडर में जाती हूँ और डिफ़ॉल्ट स्टाइल चूज़ कर लेती हूँ. ठीक है, ये मैंने हेडर चूज़ कर लिया. अब थोड़ा इसको अफेक्टिव बनाने के लिए दिस फ्रॉम हियर यू कैन इंसर्ट टेबल. ठीक है, मैं टेबल चूज़ करती हूँ ऑफ 2 रोज एंड 1 कॉलम. ओके, मैंने एक टेबल सेलेक्ट कर लिया. थोड़ी इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं अपने हिसाब से. नाउ मैं इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देना चाहती हूँ. तो मैं ऑन द राइट साइड ऑफ दी वी हैव 2 बॉक्सेस राइट अवेलेबल इन दिस टेबल. तो मैं जो राइट वाला बॉक्स है उसमें मैं अपना एड्रेस देना चाहती हूँ और जो लेफ़्ट वाला है मैं उसमें अपना नाम और डेजिग्नेशन देना चाहती हूँ. फॉर एग्जांपल, बट द अलाइनमेंट आई वांट इट शुड बी ऑन द राइट साइड. इट शुड बी राइट अलाइंड. तो मैं यहाँ से अलाइनमेंट चूज़ कर लेती हूँ तो आपका कर्सर राइट अलाइंड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हम इसमें अपने कॉलेज का ही एड्रेस दे देते हैं लाइक मैं आती हूँ अपने लेफ़्ट साइड में. लेफ़्ट साइड में अपना मैं नेम एंड अपना डिजिग्नेशन दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल वी टेक अ रैंडम नेम लाइक सेट हो गया. अगर आप चाहें तो अपना लोगो भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का. तो इट विल बी लुक मोर अफेक्टिव. ओके, यहाँ बाजू में आप अपना लोगो आप सेट कर सकते हैं. फिर आप अपना नाम और डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट शो कर सकते हैं. इट इज़ रेडी. नाउ अब आते हैं हम द मिडिल पार्ट ऑफ द पेज. ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप कर्सर जा रहा है. पैराग्राफ स्टाइल देने के लिए वी कैन यूज़ दिस काइंड्स ऑफ स्टाइल्स. ठीक है, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट में 3-4 हेडिंग देनी है. तो हेडिंग के लिए मुझे जब भी मैं हेडिंग देने की कोशिश करूँगी तो क्या होगा कि मुझे उसमें बार बार उसका साइज़ डिफाइन करना पड़ेगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा. तो मैं पहले से ही इसको डिफ़ॉल्टली असाइन कर देती हूँ ताकि जब भी मैं हेडिंग लिखना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिकली वैसा ही अपीयर होना चाहिए. लाइक इन दिस मैं ऐसे ही लिख देती हूँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. heading 1, heading 2, heading 3. ठीक है, मैं heading 1 को सेलेक्ट करती हूँ और मैं इसको इन दिस फॉर्मेट में चेंज कर देती हूँ. ओके, heading 2 को heading 2 के फॉर्म में चेंज कर देती हूँ और हेडिंग 3 को हेडिंग 3 के फॉर्म में. तो मैं
जब भी हेडिंग्स देना चाहूँगी मुझे बस उस पर क्लिक करना है, तो वैसा ही फॉन्ट स्टाइल एंड उसकी साइज़ मुझे मिल जाएगी। राइट नाउ मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ये सेट कर दिया। नाउ अब मुझे इसकी हेडिंग देनी है, सो मैं इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ। दिस इज़ माई मेन मेन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया। अब इसका मैं मेन पार्ट लिखना चाहती हूँ, इसके अंदर का कंटेंट लिखना चाहती हूँ, तो आई कैन राइट लाइक दिस इज माय सब डॉक्यूमेंट, दिस इज माय सब डॉक्यूमेंट। नाउ अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको कॉपी कर लेती हूँ। आप कॉपी कहीं से भी कर सकते हैं जाके, मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V से कर लेती हूँ। फॉर इंक्रीजिंग द कंटेंट इन माई डॉक्यूमेंट, आई एम जस्ट व्हाट आई एम डूइंग इज पेस्टिंग द कंटेंट। फॉर मेकिंग ए पैराग्राफ, नॉर्मली मैंने एक कंटेंट तैयार करने के लिए उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एंटर मार के मुझे एक नया हेडिंग देना है, इसके अंदर एक नया हेडिंग देना है। तो मैं लिख देती हूँ दिस इज माय सेकेंड मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मैंने हेडिंग 2 के लिए सेट किया था वैसा ही दिखे। तो ये देखा आपने, ये हेडिंग 2 में जो भी मैंने फॉन्ट स्टाइल और उसकी साइज़ डिफ़ाइन की हुई थी, अगर मैंने और भी कुछ किया होता, बोल्ड किया होता, इटैलिक किया होता, अंडरलाइन किया होता, तो वो वैसे ही हो जाता। अब मैं इसी कंटेंट को दोबारा कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ओके, सो काइंड ऑफ मेरा एक डॉक्यूमेंट रेडी होते जा रहा है। Now if I want to change the font style, so there are lots of font styles are available, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम चूजिंग टाइम्स न्यू रोमन, the whole document will be in the font style of this, or I can choose any font style. I can change the size of the text. I can make it bold, italic, like I have chosen this. I can make it bold, I can make it in the form of italics, I can underline this line or use strike through between the text. okay, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर आपको जो आपने किया है यार आप उसको अनेबल करना डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, तो आप जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं बैक अंडू, आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप उसको अंडू करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं एंड क्लियर फॉर्मेटिंग से भी आप कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको मैं अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप यहाँ पे जाके आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगर आपको कोई भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आप कंट्रोल O करके भी ओपन कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट योर डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ PDF। यू कैन व्हेन यू वांट टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट आप प्रिंट दे सकते हैं यहाँ से, या फिर कंट्रोल P इज़ द शॉर्टकट की। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना हो वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, कुछ पेस्ट करना हो या फिर फॉर्मेटिंग करनी हो, सो देयर आर डिफरेंट टूल्स। यू वांट टू फाइंड, अगर मैं कुछ फाइंड करना चाहती हूँ, ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन है।
जो भी यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी वर्ड को किसी से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वो वर्ड लिख देना है, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, यू कैन इंसर्ट टेबल्स, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आ जाती हूँ। अभी मुझे कोई टेबल इंसर्ट करना है, इट शुड बी इन दिस फॉर्म। यहाँ पे आप अपने साइज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखेंगे कि अगर आपको बीच में कोई अबव रो इंसर्ट करना है, बिलो करना है, कॉलम करना है, डिलीट करना है कोई रो को, सेल को सेलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है। सो ऑन द बॉटम ऑफ द पेज यू हैव मेनी ऑप्शंस। ओके, ये हो गया। अगर मैं इसमें कुछ फॉर एग्जांपल नेम, इफ आई वांट टू क्रिएट वन काइंड ऑफ एन डेटाबेस, रोल नंबर, एड्रेस, ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पे इसके अबव में एक रो इंसर्ट करना चाहती हूँ तो आई कैन क्लिक हियर एंड एक रो मेरा इंसर्ट हो जाएगा। अगर इंसर्ट रो बिलो करना चाहती हूँ तो बिलो में एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। इफ़ आई वांट कि एक साइड में मेरा कॉलम इंसर्ट हो तो ऑन द लेफ्ट साइड तो एक कॉलम इंसर्ट हो गया। सो यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, नाउ if I'm writing any content and the content is not sufficient for someone and I want to provide a link or through which your client or your customer or any destination person click on the link and get some more information, तो you can provide it from here। आप यहाँ पे कोई भी लिंक दे सकते हैं। लाइक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देती हूँ www.google.com मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ फॉर फर्दर ऑन द लिंक बिलो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इफ़ योर सिस्टम इज़ कनेक्टेड विद एन इंटरनेट आप डायरेक्टली उस लिंक पे जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट फुटनोट इन योर डॉक्यूमेंट जस्ट क्लिक ऑन दिस। ठीक है, आपको फुटनोट आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट compiled by some random name। You can provide footnote or you can provide footnote from here also in this header and footer, sorry footnote and end note। तो आप यहाँ पे footnote and end note भी प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम here also। फ्रॉम कोई आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है एंड आपको वहाँ पे क्लिक करना है तो आप इसमें आपकी पेज का नंबर भी डिफाइन होते जाएगा। ओके, आपको कोई बुक मार्क प्रोवाइड करना है तो आप बुक मार्क प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस ऑप्शन। और यू कैन इफ़ यू वांट सम कमेंट शुड बी पब्लिश, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मैं चाहती हूँ कोई कमेंट हो, कमेंट में लिखना चाहती हूँ कि कोई ऑथर जिसने फॉर एग्जांपल सम ब्ला कमेंट में देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कमेंट भी दे सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, and if you want to record the changes you have made in your document from this icon or from this tool you can record the changes। आप बेसिक शेप्स आप फॉर एग्जांपल आप कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप बेसिक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, एंड यू कैन इंसर्ट
कलर आप खुद चूज़ कर सकते हैं, आप वाइट करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, आप कोई भी फ्लो चार्ट अगर ड्रॉ कर रहे हैं लाइक, ठीक है, यहाँ पे आप एरो लगा के कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. यू हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो. आई एम रिमूविंग दिस राइट नाउ, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, नाउ now you can see in this file menu you can open a new spreadsheet, new document, new presentation, new drawing tool. आप ओपन कर सकते हैं टेम्पलेट्स, विजार्ड्स जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा. लेटर लिखने के लिए अगर आप कोई ओपन कर लेटर लिखना चाहते हैं तो आपको वैसे टाइप का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन टेम्पलेट्स फॉर्म. आप उसको सेव कर सकते हैं, सेव टू रिमोट सर्वर, सेव एज, सेव अ कॉपी, सेव ऑल. आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF और एनी डॉट एक्सटेंशन फाइल यू वांट टू सेव इट और यू वांट टू एक्सपोर्ट इट. आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं. जब प्रिंट प्रीव्यू हम लोग लास्ट में देखते हैं प्रिंट करने के लिए. सो ऑल दिस इज़ अबाउट योर फाइल मेनू. नेक्स्ट इज़ एडिट ऑप्शन, अंडू रीडू करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट, ओके, फाइंड एंड रिप्लेस. अगर रेफरेंसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं आप अपने फुट नोट या एंड नोट पे कि मैंने जो भी कंटेंट लिखा है मैंने कहाँ से रेफ़र किया है, तो आप रेफरेंसेस भी दे सकते हैं इन योर एंड पार्ट. ओके, नेक्स्ट इज़ योर व्यू ऑप्शन. व्यू में डिफरेंट टूल बार्स प्रोवाइड किए गए हैं. नाउ व्यू में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने like this is my document. अब यहाँ पे आपको रूलर शो हो रहा है, ठीक है. इस रूलर को मैं अगर मेरे को कोई कंटेंट सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग करनी है या इंडेंटेशन प्रोवाइड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो विद द हेल्प ऑफ एन रूलर आई कैन डू इट वेरी ईजीली. कि देखिए आप मेरे डॉक्यूमेंट साइड खिसक गया, या फिर मैं उसको नॉर्मल जिस फॉर्म में भी करना चाहती हूँ. लाइक मैंने ये कंटेंट लिखा है, अब मैं इसको चाहती हूँ थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में, ये इसके अंदर होना चाहिए. तो आई सेलेक्ट दी रूलर लाइन और अगर मैं इसको साइड कर दूँगी तो वो साइड हो जाएगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर यू कैन कंट्रोल योर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. नेक्स्ट इज़ योर इन दिस इंसर्ट, यू कैन इंसर्ट इमेज. आप कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट, फ्रेम. You can provide hyperlink as I have told you, bookmark, cross references, special characters. Okay, so you can explore this library writer and do different things. And this you can format your text. In your formatting your text you can change your font styles, you can change the size of your fonts, you can provide spacing like line spacing. अगर आप 1 देना चाहते हैं, 1.5 देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं, between 2 line spacing is like कि 2 वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए. दिस इज़ योर लाइन स्पेसिंग. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉर्मेटिंग स्टाइल्स. ये जो स्टाइल मैंने आपको पहले ही डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ के टाइम पे बताया था, सेम आप इस टूल से भी जाके कर सकते हैं. टेबल, अगर आप टेबल का इंसर्ट किए हैं आपने टेबल, तो टेबल को आप कैसे मर्ज करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ऑल दिस यू कैन डू. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन यू इंसर्ट. अगर आपको कहीं पे भी, जैसे मैंने लिखा है, इसके ऊपर मुझे सुपरस्क्रिप्ट देना है, ठीक है. फ्रॉम दिस टूल आप उसको
सुपरस्क्रिप्ट दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ कोई लेटर लिख रहे हैं उसके ऊपर लाइक इन जैसे ए स्क्वायर है आप लिखना चाहते हैं, तो फ्रॉम दिस ऑप्शन यू कैन सुपरस्क्रिप्ट दैट लेटर, दिस इज़ योर सबस्क्रिप्ट, ठीक है। Now if I'm selecting this document, okay, and if I want this document to be get right aligned, तो ये right aligned हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि centrally aligned रहे तो centrally हो जाएगा। सॉरी द फर्स्ट वन वॉज लेफ्ट aligned। अगर फिर से मुझे right align करना है तो वो alignment right हो जाएगी, या फिर आप चाहते हैं कि justified alignment हो, एक जैसा दिखे पूरा डॉक्यूमेंट, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें फॉर्मेट में कि लाइन स्पेसिंग कैसे देनी है, आप यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, ओके। एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग अगर आपको बढ़ानी है, अगर आप कोई 2-3 पैराग्राफ लिख रहे हैं उस बीच में अगर आपको पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइबर ऑफिस राइटर। यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। आप यहाँ से चार्ट बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ एंड आई वांट टू ड्रॉ अ चार्ट, तो मैं यहाँ पे चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप इसमें डेटा सीरीज़ को फॉर्मेट करेंगे या इंसर्ट डेटा लेबल्स करेंगे, तो आप यहाँ पे अपने जो भी आप डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं ऑन योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आप फ्रॉम दिस बाय राइट क्लिकिंग ऑन दिस चार्ट यू कैन गिव नेम एज यू डिज़ायर, ओके। यू कैन इंसर्ट ए इमेज ऑल्सो। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट के बीच में इमेज देना चाहते हो तो आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज योर अलाइनमेंट ऑप्शंस। हाउ कैन यू अलाइन टॉप योर टेक्स्ट, हाउ कैन यू align in the middle, how can you align in the bottom, okay, this is all our alignment options। अगर आपके पेज 2-3 हैं, अगर आप उसको wrap up करना चाहते हैं तो you have a option of wrapping up the page also। So this is all about your LibreOffice writer। In my next video I am going to introduce you with the LibreOffice Calc, which is work as a spreadsheet in MS Office, ठीक है। दिस इज़ योर प्रीव्यू ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं कि जो भी हमने उसमें इंसर्ट, जो भी आप और बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे। इन माय नेक्स्ट लैब सेशन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद द LibreOffice Calc, ओके, थैंक यू।